Tanushree Pradhan. I welcome you all to my channel. In the previous class, we discussed about Venn diagram and operation on set. Mainly, there are three types of operation on set. That is union of set, intersection of set, and difference of set. In the previous class, I told you about union of set, and in this class, I will discuss about intersection of set and difference of set. So, what is intersection of set? The intersection of set A and B is the set of all elements which are common to both A and B. Common to both set A and B. Okay, let me explain you with the help of an example. I am taking set A equals to 2, 4, 6, 8 and set B equals to 6, 8, 10, 12 and A intersection B, which is symbolically written as A intersection B. This is the sign of intersection, opposite of U. Okay, A intersection B, according to the definition, the intersection of set A and B is the set of all elements which are common to both A and B. So पहले हम देखेंगे कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है ए और बी में. So 6 is common, 8 is common. So our set of A intersection B will be 6 and 8. Okay. जो जो एलिमेंट कॉमन है उसे खाली लिखना है और बाकी सब एलिमेंट को नहीं लिखेंगे. हुआ. एंड द सेट ऑफ द कॉमन एलिमेंट is known as A intersection B. Now, intersection of a set, mathematically it can be written as A intersection B is equals to X such that X belongs to A and X belongs to B. डिफरेंस देखो, यूनियन में यहाँ और आ रहा था, बट इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन इट इज़ एंड. ओके, एंड मतलब वो एक्स को भी बिलोंग करेगा. सपोज एक्स इज एन एलिमेंट present in the set A intersection B, then it must belongs to A as well as to B. मतलब ये जो एलिमेंट होगा A इंटरसेक्शन B का, वो ईच एलिमेंट दोनों सेट को बिलोंग करेगा, सेट A को भी और सेट B को भी. हुआ. दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एन सेट. सो नाउ लेट अस सी ए केस where if A and B are two sets such that A intersection B is equals to 5. Okay, then A and B are called disjoint sets. Let me take an example.
so that you can understand it easily. I am taking set A to be 2, 4, 6 and 8. Set B 1, 3, 5, 7. तो मैंने अभी बोला कि A इंटरसेक्शन B में वो सब एलिमेंट रहेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। A और B में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो A इंटरसेक्शन B में रहेंगे। तो इन दिस केस you can see there is no element common in set A and set B. Therefore, A intersection B is equals to 5, and if this happen, then the set A and set B are called disjoint सेट। ओके, अगर इंटरसेक्शन 5 हुआ, 5 मतलब एम्प्टी सेट हुआ। अगर इंटरसेक्शन 5 हुआ, देन द सेट A एंड B विल कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट। सो हम इंटरसेक्शन का भी वेन डायग्राम बनाएंगे। हुआ, पहले इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम बनाएंगे। वाह, सो इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम होगा, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर। इंटरसेक्शन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम पहले रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट रखेंगे, उसके बाद सेट A बनाएंगे और सेट B। ओके, ये सेट A, ये सेट B। तो A इंटरसेक्शन B, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ A एंड B। तो A और B सर्कल में कॉमन कौन सा आ रहा है? ये पार्ट। तो ये होगा, दिस विल बी नोन एज A इंटरसेक्शन B. So this is the Venn diagram for A intersection B, and now let us draw Venn diagram for disjoint set. ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट U, ये होगा हमारा सेट A एंड सेट B। इनके बीच में ये दोनों सर्किल ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर दे आर नोन एज डिसजॉइंट सेट। ओके, सो नाउ वी विल सी सम प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे हमने यूनियन के केस में 5 प्रॉपर्टी शायद स्टडी किया था, हाँ 5 प्रॉपर्टी। सिमिलरली इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन वी विल स्टडी 6 प्रॉपर्टी। ओके, so first is commutative law, almost similar like in the case of union, A intersection B is equals to B intersection A. Okay, second is associative law, A intersection B bracket intersection C is equals to A intersection B intersection C. Third is phi intersection A is equals to phi and universal set intersection A is equals to A. These two are known as law of empty set and union set. This is known as law of empty set and this is known as law of universal set. देखो फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता और सेट ए में तो कुछ एलिमेंट होंगे, तो ये फाई में अगर कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो ये दोनों में कॉमन क्या जाएगा? कुछ भी नहीं, तो इसीलिए ये फाई हुआ।
और यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल मतलब ये जो ए है ये यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होगा। सो अगर यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ये, तो ये दोनों में पूरा ए ही कॉमन जाएगा। मैं एग्जांपल दे देती हूँ। अगर u होगा मेरा नेचुरल नंबर, मैं ले रही हूँ u इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन, और a ले रही हूँ क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट जो होता है ना थोड़ा बड़ा होता है जनरली, वाह, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। और a को मैं ले रही हूँ 2 4 6, तो नेचुरल नंबर में ये तीनों एलिमेंट जा रहे हैं, तो ये u और यूनिवर्सल सेट और a में कॉमन क्या जाएगा, कॉमन जाएगा u इंटरसेक्शन a इज इक्वल्स टू 2 4 6 जाएगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 सो ऑन चलता रहेगा। तो ये और ये इक्वल हो गया, देखो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन a इज इक्वल्स टू a। ओके, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ universal set. And next property is fourth property, a intersection a is equals to a। दोनों मतलब सेम सेट का इंटरसेक्शन वही सेट ही होगा, क्योंकि उनमें सारे एलिमेंट सेम होंगे। ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। That is a intersection b union c is equals to a intersection b union a intersection c. Here that is intersection distributes over union. ओके, ये टेक्स्ट बुक में दिया है। और एक तो इसका ये जैसे इंटरसेक्शन का है, यूनियन का भी एक फॉर्मूला है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, हाँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये दोनों फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। सो द लास्ट ऑपरेशन ऑफ सेट इज द डिफरेंस ऑफ सेट। द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। ओके, मतलब a minus b implies set of element which belongs to a but not to b। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ so that it will clear to you all। A is a set of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, and I am taking another set B 2 4 6 8 10। अभी A माइनस B और A डिफरेंस B निकालूंगी। तो as you can see in the definition, the difference of the set A and B is this order is the set of element which belongs to A but not to B। मतलब ये एक सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट A को बिलोंग करेंगे बट नॉट टू B। ओके, तो हम देख लेते हैं A और B में कॉमन क्या है। 2 4 6 8 10, these are the common element in both A and B। so ये सारे एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितना एलिमेंट बचेगा A में उसको हम लोग लिख देंगे, एंड दैट विल बी द सेट
of A minus B, and it will 1 3 5 7 9. Okay, I am taking another example. A is equals to 1 3 4 5 9 and B is equals to 3 4 5. In this case A डिफरेंस B will be, मैंने बोला था जितने भी एलिमेंट A और B में कॉमन होंगे उसको छोड़ देना और बाकी जितना बचेगा A में उसको लिखेंगे, तो इट विल बी 1 and 9 हुआ। जितने एलिमेंट B में हैं उस सबको सब्सट्रैक्ट कर देना। अगर मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है B में, सपोज़ 7, जो कि A में नहीं है, तो क्या मैं इसे लिखूँगी सेट में? नहीं। A डिफरेंस B मतलब B का जितना भी B और A में जितना कॉमन सेट है, कॉमन एलिमेंट है, उसको छोड़ के बाकी A में जितना एलिमेंट बचेगा उसको लिखेंगे। वाह। सो A डिफरेंस B इज़ दिस। और अगर ये 7 नहीं होता यहाँ और मैं निकालती B डिफरेंस A, तो B और A से A और B में कॉमन 3 4 5 जा रहा है, तो B डिफरेंस A जब निकालूंगी तब B में और कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा बच ही नहीं रहा, मतलब B is in subset of A, therefore there is no element left behind, so the set will be 5. B डिफरेंस A set will be 5. इसको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट, ये हो गया A, ये हो गया B, तो अभी A माइनस B और A डिफरेंस B ये सब पार्ट होंगे A डिफरेंस B। ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है इसको छोड़ दे के बाकी सारा पार्ट होंगे A डिफरेंस B। सिमिलरली B डिफरेंस A होंगे ये पार्ट, इंटरसेक्शन पार्ट को छोड़ के बाकी जितने वो होंगे। तो ये हो गया A डिफरेंस B, ये हो गया B डिफरेंस A, और ये जो बीच वाला है इसको बोलेंगे A इंटरसेक्शन B। सो दिस इज़ द वेन डायग्राम फॉर A डिफरेंस B। ये यूनिवर्सल सेट U है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि A माइनस B, the set of A minus B, the set of B minus A and the set of A intersection B are disjoint set। मतलब अगर मैं A डिफरेंस B और B डिफरेंस A का इंटरसेक्शन निकालूं तो 5 निकलेगा, B डिफरेंस A और A इंटरसेक्शन B का इंटरसेक्शन निकालूं तो भी 5 निकलेगा। सिमिलरली A डिफरेंस B एंड A इंटरसेक्शन B का इंटरसेक्शन निकालूंगी वो भी 5 निकलेगा। देयरफॉर these 3 are mutually disjoint sets। ओके, so this completes the 1.4th exercise of NCERT class 12 chapter set, first chapter. Hope this video is helpful for you. If so, please do like, share and subscribe. Thank you.